morning, dear students. Students, today we are going to make a start of another lesson from your textbook, that is The Merchant of Venice. Students, this is a novel written by William Shakespeare, right? And here we are going to get the understanding of this novel, right? So students, this is a very huge novel, but in your lesson, in your notebook, in your textbook, it is given as a very briefings of this, right? So we will make a start of today. So first of all, we will read and enjoy here. That is given on the top. A play is a piece of writing which consists of a many dialogue between characters. A play is usually watched rather than read. It can be watched at the theatre, on the television, or may be heard on the radio. Let us read an famous play, The Merchant of Venice. It is written by William Shakespeare, one of the greatest English playwrights. Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. Stratford is a small country town in the farming district near central England. Avon is a river that flows through Stratford. Shakespeare's father was a farmer and he was poor, often faced difficulties. Shakespeare went to school in Stratford. यानी ये जो प्ले है वो एक राइटिंग का बस एक टुकड़ा है, मैंने पहले भी कहा है. और यहाँ पे जो कुछ डायलॉग्स रखे हुए हैं कैरेक्टर्स के बीच में, ये लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लोगों ने देखा भी हुआ होगा टेलीविजन्स पर थ्रू प्रोग्राम, या कहीं टीवी रेडियो में सुना भी हो. ये बहुत ही फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर की, जिसका कि नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंड विलियम शेक्सपियर जो है अपने समय के एक बहुत ही महान प्ले राइट हुआ करते थे. एंड उनका जन्म हुआ था 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में. स्ट्रैटफोर्ड जो है वो एक जो है शहर का नाम है ना, जो कि इंग्लैंड के बिल्कुल बीच का एक डिस्ट्रिक्ट है. और एवॉन जो है वहाँ की नदी का नाम है, राइट. सो विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक किसान थे एंड साथ ही साथ वो बहुत गरीब थे. तो उनका जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किलों से बीता हुआ है. और वो स्ट्रैटफोर्ड में बचपन में अपने स्कूल में गए. शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे एट द एज ऑफ 18 एंड हैड 3 चिल्ड्रेन, राइट, एंड हैड 3 चिल्ड्रेन विथ हर. समटाइम्स between 1585 and 1592 he began a successful career in London as an actor, writer, and was part owner of a play company called the Lord Chamberlain Maine, later called King's Maine. Shakespeare wrote many plays, sonnets and poems. His plays have been translated into various languages. He spent the last years of his life mostly in Stratford and died peacefully in 1660. Aged 52. He is still regarded as one of the greatest writers and popularly known as the Bard of Avon. तो शेक्सपियर का जो है उन्होंने शादी की मैरी हैथवे से, एनी हैथवे से 18 साल की उम्र में. उनके 2 बच्चे भी थे. एंड शायद 1585 टू 1592 के बीच में उनके जीवन का एक सक्सेसफुल कैरियर चालू हुआ एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज अ पार्ट ओनर ऑफ अ प्ले कंपनी दैट इज़ कॉल्ड द चैम्बरलियंस मेन. बाद में उसका नाम दे दिया गया किंग्स मेन. शेक्सपियर ने बहुत सारे जो है प्लेज लिखे, सॉनेट्स लिखे, पोएम्स लिखे. उनके जो प्लेज थे उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. उन्होंने ही स्पेंट द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के आखिरी जो है वो सालों को बहुत सारे समय उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में बिताया. एंड 1616 में उन्होंने पीसफुली अपना जीवन जो है वो त्याग दिया. तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट दैट इन द एज ऑफ 31, जस्ट ओनली not even 31, means in a very short period he has made his name and fame at the age 42. 52 की एज थी, 52 की एज पे वो एक्सपायर कर गया. एंड ही इज स्टिल रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर. उनको आज भी माना जाता है, जो है दुनिया के महान लेखकों में एक माना जाता है उनको, राइट. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट मर्चेंट ऑफ वेनिस. सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, राइट. एंड read about the play and its sequences of main events. Antonio is a wealthy, respectable and popular man. He is the leading merchant of Venice.
he has many friends including Bassanio who owes him a good amount of money. He wants to repay Antonio but is unable to do so. However, Bassanio thinks he may have found a way. He will need to borrow more money from Antonio. Right. अब he tells Antonio that a young, beautiful, wealthy heiress lives in Belmont and he intends to win her hand in marriage. In order to impress her, that he would like to appear as a wealthy suitor like the other suitors. Antonio tells him that he would gladly lend him money but is unable to do so as his merchant ships are still at sea. He suggests that Bassanio can borrow money from a moneylender and use Antonio's good name as security for loan. Right. So स्टूडेंट्स यहाँ पे ओज का मतलब क्या है? राइट, ओज का मतलब होता है कर्ज. राइट, ओज का मतलब क्या है? कर्ज. तो अब यहाँ की जो कहानी शुरुआत होती है, एंटोनियो जो है क्या है, एक बहुत ही अमीर और एक बहुत ही क्या है, पॉपुलर आदमी है. रिस्पेक्टेबल और पॉपुलर है, अमीर है, सम्मानित है, प्रसिद्ध है. एंड ही इज़ द लीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस. वही जो है इस कहानी का एक तरह का हीरो भी मान सकते हैं आप, लीडिंग भी है, उसी से शुरुआत होती है. उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. बसेनियो भी उन्हीं फ्रेंड्स में से एक है जिसने कि बहुत सारे कर्ज ले रखे थे पैसे के रूप में एंटोनियो से. वह एंटोनियो को पैसे पे करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में वो असम जो है उसको क्या कहते थे, अभी योग्य नहीं था. एंड बसेनियो ये सोचता था कि ही मे हैव फाउंड अ वे, उसे कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाएगा. एंड ही विल नीड टू बोरो मोर मनी फ्रॉम एंटोनियो. उसे पैसे की कुछ और ज़रूरत हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और वो बसेनियो से बताता है कि ही टेल्स दैट अ यंग, उसने बताया कि एक नौजवान और खूबसूरत और बहुत ही अमीर है ना, जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, जो कि बेलमोंट में रहती है. एंड हिज फ्रेंड्स एंड ही इंटेंड्स टू विन हर हैंड इन मैरिज. और बेसेनियो बताता है कि वह उसका हाथ चाहता है शादी करने के लिए. और इन ऑर्डर टू इम्प्रेस हर, उसको आकर्षित करने के लिए, ही वुड लाइक टू अपीयर एज अ वेल्दी सूटर, उसे एक अमीर व्यक्ति की तरह दिखना होगा जैसे कि और लोग दिखते हैं. एंटोनियो जो है बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे बड़ी खुशी होती तुम्हें पैसे देते तो, लेकिन मैं अभी ऐसा करने में असहमत हूँ, अभी ऐसा करने में मैं योग्य मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो व्यापारी जहाज़ें हैं वो अभी कहाँ हैं, समुद्र में हैं. उसने सजेस्ट किया बेसेनियो कहीं से पैसे ले सकता है, किसी भी मनी लेंडर से, एंटोनियो के अच्छे नाम को यूज़ करके, जो कि एज ए सिक्योरिटी उसने कहा कि चाहे तो सिक्योरिटी के तौर पे मेरा नाम इस्तेमाल कर लो. राइट. एट बेलमोंट पोर्सिया टेल्स नेरिसा हर कॉन्फिडेंट that she is tired of the suitors and she wishes to be free of the obligation of her father's will. According to the will, she cannot choose her own husband. She can marry only the man who chooses the correct casket from among the 3 caskets of gold, silver and lead. One of the caskets contains Porcia's casket, which had to be chosen to win her hand in marriage. So far, none of the suitors had any luck. Porcia has not liked of any of them either. When Nerissa mentions Bassanio's name, Porcia says that he had impressed her on a visit to Belmont. Right. अब बेलमोंट जो है कि पेरिस का एक शहर है, तो बेलमोंट शहर में पेरिस जो पोर्सिया है वो नेरिसा से कहती है कि वह जो है थक चुकी है ना, वह जो है वो थक चुकी है इन सूटर्स का जो है वो देखते देखते. सूटर्स मतलब कौन, वो जो उसके स्वयंवर के लिए आए हुए थे. उसने कहा कि उसकी इच्छा है, सी विशेस टू बी फ्री ऑफ द ऑब्लिगेशन. उसे ये था कि उसे इस जो है स्टेटमेंट जो दिया था उसके फादर ने, उसे उसको फ्री कर दिया जाए, है ना. उसके फादर की इच्छा के हिसाब से क्या था कि वो अपने मन से अपने हस्बैंड को नहीं चुन सकती थी, बल्कि उसे उसी से शादी करनी होगी जो कि सही बॉक्स को चुनेगा. और बॉक्सेस में क्या फिलअप किए हुए थे, 3 कास्केट्स, 3 बॉक्सेस रखे हुए थे. एक गोल्ड फिलअप हुआ था, एक में सिल्वर फिलअप हुआ था और एक में लेड था. एक जो कास्केट था
उसमें पोर्सिया की पिक्चर थी एंड जिसे चुना जाना था अगर कोई पोर्सिया से शादी करना चाहता है तो। लेकिन किसी भी शूटर का इतना बेहतर लक नहीं था, किसी का भाग्य इतना अच्छा नहीं था। एंड दूसरी बात ये थी कि पोर्सिया किसी और के साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही नेरिसा ने कहा, नेरिसा एक नेम है जो है पोर्सिया की फ्रेंड, नेरिसा ने कहा, बेसेनियो का नाम लिया, पोर्सिया ने कहा कि जो है बेसेनियो ने उसे पहली ही नज़र में क्या कर लिया था, इम्प्रेस कर लिया था, वो बेसेनियो को पसंद करती थी। नाउ मीनवाइल इन वेनिस बेसेनियो बोरोज 3000 ducats for 3 months from Shylock, a rich Jewish moneylender. Shylock secretly hates Antonio and forgoes the high rate interest he usually charges. Instead, he demands that if the day of payment falls due and money is not returned, he may cut off 1 pound of flesh from Antonio's body. Antonio agrees on these terms as he is sure that ships will return a month before the due date. ठीक उसी समय वेनिस में क्या होता है, बेसेनियो जो है वो 3000 ducats जो है वो कर्ज लेता है शायलॉक से एंटोनियो का नाम बता करके। और शायलॉक क्या होता है, एक यहूदी मनी लेंडर होता है जो कि पैसे देता है लोगों को कर्ज पे। शायलॉक जो है वो नफरत करता है किससे, एंटोनियो से, एंड इसलिए उसने बहुत हाई रेट पर इंटरेस्ट दिया, हाई रेट का जो है इंटरेस्ट तय किया। और इस बार उसने थोड़ा सा कुछ अलग ही डिमांड की। डिमांड ये थी कि अगर पेमेंट का डेट ड्यू रह गया, पेमेंट का डेट पार हो जाए और अभी भी पैसे अगर चुकाए नहीं जा पाए तो शायलॉक क्या करेगा, एंटोनियो के शरीर से मांस काटेगा, वो भी कितना, 1 पाउंड। एंटोनियो अग्री कर जाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसकी शिप जल्द ही वापस आ जाएगी, राइट। एंड अब क्या यहाँ पे होता है, लॉरेंजो, अ कोल्ड फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, a close friend of Antonio and Bassanio intends to marry Shylock's daughter Jessica. They live together secretly and she disguises a boy while doing so. She also carries a good amount of her father's ducats, which angers Shylock. He decides to take revenge. Lorenzo, जो कि एंटोनियो और बेसेनियो का एक मित्र होता है, वह शायलॉक की बेटी जिसका कि नाम होता है जेसिका, उससे शादी करना चाहता है। और लोरेंजो जेसिका के साथ घर छोड़ देता है। वे सीक्रेटली एक जगह जा कर के रहने लगते थे और सी डिस्गाइज एज अ बॉय, है ना, सी डिस्गाइज एज अ बॉय, और वो भगी कैसे, एक बच्चे के रूप में, एक लड़के का रूप पकड़ करके। और साथ ही साथ जब उसने घर छोड़ा तो उसने अपने साथ गुड अमाउंट ऑफ हर फादर्स डुकेट्स, अपने डुकेट्स जो एक करेंसी है ना, तो उसने अपने पिता के वहाँ से बहुत लंबे अमाउंट में पैसे ले रखे थे। इससे शायलॉक और क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने की सोच ली। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। देन बेसानियो एंड ग्रेसियानो लीव फॉर बेलमोंट, राइट। देन बेसानियो एंड ग्रेसियानो लीव्स फॉर बेलमोंट. पोर्सिया सेंड्स अवे 2 suitors, the Prince of Morocco and the Prince of Aragon, who choose wrong caskets. Bassanio choose the lead casket and it has Porcia's portrait. They are overjoyed and decided to marry along with Nerissa and Graciano, who also want to marry one another. Soon Bassiano receives a letter from Antonio bidding him farewell as his ships have not returned and Shylock will take a pound of flesh. Bassanio rushes to Venice with the money that Porcia gives him to repay Shylock. अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो बेसानियो है और ग्रेसियानो वो दोनों बेलमोंट के लिए चले जाते हैं। पोर्सिया जो है वह 2 स्वयंवर में आए हुए 2 लोगों को भेजती है, प्रिंस ऑफ मोरक्को को और प्रिंस ऑफ एरागॉन को, और इन दोनों ने अनफॉर्चुनेटली क्या चुन लिया, तो इन्होंने गलत बॉक्स को चुन लिया। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ने गलत बॉक्स को चुन लिया और बेसानियो चूज करता है लेड कैस्केट को
शीशे की कैस्केट को वो चुनता है जिसमें पोर्सिया का पोर्ट्रेट होता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और शादी करने की सोचते हैं। किसके साथ? तो नेरिसा एंड ग्रेसियानो, जो भी वो दोनों भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नेरिसा कौन? पोर्सिया की फ्रेंड, और ग्रेसियानो कौन? बेसेनियो का फ्रेंड। ये दोनों भी शादी करना चाहते हैं। दोनों की शादियां हो जाती हैं। बेसेनियो रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो। उसी समय बेसेनियो को एंटोनियो से एक लेटर मिलता है, एंड बिडिंग हिम फेयरवेल एज हिज शिप्स द मन हैव नॉट रिटर्न एंड साइलॉक विल टेक अ पाउंड ऑफ हिज फ्लेश। वो अपनी बताता है कि फेयरवेल के बाद, उसके जाने के बाद उसकी शिप जो है वो वापस नहीं लौटी, वो डूब गई और वो समय से साइलॉक का पैसा नहीं चुका पाया, जिसके वजह से वो फ्लेश लेने वाला है। बेसेनियो जो है वो दौड़ के वेनिस की तरफ को जाता है एंड विद द मनी, पैसे लेकर के। और वो पैसे कौन देता है उसे? तो उसे पोर्सिया देती है कि वह साइलॉक को ये पैसे वापस कर देगा। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द हाफ पार्ट ऑफ दिस लेसन. Rest of the half we will cover tomorrow. So we'll meet there. Up to the time, thank you. Have a nice day.